The undercover investigation has been carried out in good faith and in public interest. The organization and the journalist conducting the investigation are in no way associated or aligned with or against any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group named in the video or otherwise. Any reference, direct or indirect, made either to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group, or to any association, proximity, enmity, rivalry, hatred for, towards, between any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group is purely for the purpose of the investigation. It should not be insinuated from the contents of the investigation that the organization or the journalist conducting the investigation has done so either to target or at the behest of any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group. References in the video made by the persons other than the journalist conducting the investigation to any person, political party, organization, entity, institution, religion, or religious group are the sole prerogative and personal opinion of the respective persons. The organization and the journalist conducting the investigation do not intend to outrage, insult, wound, or hurt any religion or the religious sentiments, beliefs, or feelings of any persons or class or community while conducting the investigation. Viewers are advised that the videos have been transcribed to the best of our ability. Transcribing is a painstaking process and error-prone work. In case of any error, the video along with the audio should be referred to. Errors, if any, in transcribing are purely bona fide and unintentional. It should be remembered that subtitles are only an aid to the viewing process. Any misrepresentation or deviation of the editorial from the original documentary in Hindi as published on the official website of Cobra Post, or error due to translation into vernacular in news stickers, news bands, or any other visual element is the sole responsibility of the media channel carrying the story, whether in part or whole. आजकल मीडिया पर पक्षपात और किसी खास एजेंडे पर काम करने के आरोप लग रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप मीडिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसी सच्चाई को जानने के लिए पत्रकार पुष्प शर्मा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से टेलीकास्ट होने वाले न्यूज चैनल साधना प्राइम न्यूज के दफ्तर श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति के प्रचारक बनकर पहुंचे। यहाँ पुष्प की मुलाकात साधना प्राइम न्यूज के डायरेक्टर आलोक कुमार भट्ट से हुई। आलोक को पुष्प शर्मा ने बताया कि आने वाले चुनावों के मद्देनजर हिंदुत्व का गुप्त एजेंडा चलाने और पॉलिटिकल राइवल्स को थ्रेश करने के लिए उनको प्रोपेगेंडा तैयार करना है। तो इस पूरी डील के लिए आलोक कुमार भट्ट एकदम से न सिर्फ राजी हो गए, बल्कि बताया कि उनका संघ से कितना जुड़ाव है और वो ऐसा प्रोपेगेंडा आउट ऑफ वे जाकर भी करते आए हैं। आपके साथ मेरी शायद दो मुद्दों के ऊपर बात हुई थी। एक तो प्रिंट के ऊपर, डिजिटल के ऊपर। डिजिटल में तो .com ही होगी कंपनी का चैनल तो है ही है। हाँ। लेकिन उसके अलावा डिजिटल में शायद जो आपकी कंपनी की जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट या यूट्यूब या फेसबुक, जो भी, बस वही कंटेंट वहाँ चला जाता है जी। वही सेम चीज़ वहाँ चली जाती है। अच्छा, मोटिव क्या है आचार्य जी? मोटिव तो भाई साहब धार्मिकता की को सामने ही रखना है, लेकिन उसकी आड़ में नहीं कहूँगा, लेकिन येस ऑफ कोर्स लाइक एनी पॉलिटिकल सिस्टम इन आर डेमोक्रेटिक सेटअप, दोज हु आर ट्राइंग टू टेक द माइलेज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट और देयर काइंड ऑफ स्कूल ऑफ थॉट, वी आर सर्टेनली ट्राइंग टू रन हिंदुत्व काइंड ऑफ एजेंडा। एक सॉफ्ट हिंदुत्व तो वो जीवन शैली हमारी, हम तो उसको बिजनेस नहीं कह सकते, पर वो हमारे जीवन में या हमारी सोच में और हमारी व्यवस्था में हिंदुत्व एक बड़ा नेगेटिव टर्म हो गया। तो इन ब्रीफ इफ आई कम डाउन एंड ट्राई टू हिट द पिच स्ट्रेट, इट इज़ जस्ट दैट देयर आर थ्री काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आउट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज विच वी आर लुकिंग फॉर। नंबर वन, एज वी कॉल इट एज ए सॉफ्ट हिंदुत्व। लॉर्ड श्री कृष्णा, श्रीमद् भागवत गीता, वही कोर्स, वही श्री कृष्ण की वाणी, उसी को जन जन तक लेके जाना है। वोट की व्यवस्था के लोग हमारी कैंपेन से अपना पॉलिटिकल फ़ायदा लेंगे, जो हमारे विरोधी हैं वो हमें गाली भी देंगे। तो अपने को अपना काम करना है भाई साहब। राजनीति उसका क्या करता है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने लिए हमारी भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है वो जन जन तक पहुँचे, तो वो एक व्यवस्था पूरे सच्चे मन के साथ मन में है।
सेकंड जो पार्ट है डिजिटल पार्ट, जैसे जैसे कभी भी जो हमारे सीनियर व्यक्ति हैं, जैसे श्रीमान मोहन भागवत जी भाई साहब हो गए, उमा दीदी हो गई, कल्याण जी भाई साहब हो गए, जो प्योर आंदोलन या दिल की वाणी बोलने वाले लोग हैं, तो जब भी कभी व्यवस्था में आना हो तो एक प्रवास के टाइम पे एक वीडियो डल गया 2-2.5 मिनट का, वो सारे चैनल डालेंगे। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपसे मतलब वो इसका एक स्पेशल कहा जाए, लेकिन एक भाव बन गया। हम लोग तो जो है एक्सक्लूसिव भी करते रहते हैं, और हमारे अपने जो वो हैं रिसोर्सेज हैं, उस पर कुछ लोग संघ के या सरकार के उसके हाँ। वो एक्सक्लूसिवली हमें देते हैं, करते हैं चीज़ों को। ठीक है, बहुत बढ़िया। कारण उसका ये है कि मेरे ग्रैंडफादर जो थे जी भाई साहब, वो संघ के फाउंडर लीडर्स में से थे, तो हम तो ये कह सकते हैं कि हम बाई बर्थ संघी हैं। तो हमारे वो एफएम्स के ऊपर भाई साहब कन्नड़ में तो चलने शुरू हो गए हैं। आपके पास है ये? मैं आप देख लो। फिर आपका कोई क्रिएटिव वगैरह भी कुछ है या कैसे, मतलब मैं एक्शन प्लान क्या होगा? एक्शन प्लान तो भाई साहब ये है, बहुत सिंपल सा। आपकी क्या क्या परेशानी है बेटा? गांव में पानी बिजली तो है। हाँ, वो मेरे पास आया था, पप्पू वाला था। मैं क्या करूं? गांव में शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। ठीक है, इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक एक शमशान घाट जरूर बना दूंगा। क्या आप अपना वोट ऐसे पप्पू लीडर्स पे बर्बाद करेंगे? अपने वोट की कद्र कीजिए, सही पार्टी के लिए वोट। तो इसमें खाली पप्पू का ही नहीं होगा अब, क्योंकि अब हमारी व्यवस्था यूपी में शुरू हो गई है। वो तो वहाँ एक्सट्रीम क्या है आचार्य जी इसका? extreme mean there are like any political wing, those who wants to thrash their political rivals, we also want to thrash our political rivals। हम उनकी जैसा है ना बजाते रहो, तो वो हमारी बजाते हैं। नागपुर के संतरे और कच्चे धारी क्या क्या बोलते हैं, नेकरधारी, ठीक है, तब तो कोई नियम नहीं लागू होते उनके ऊपर। जब हम थोड़ा सा ये पप्पू वप्पू करते हैं तो लोग हमसे कहते हैं कि आप शालीन भाषा नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमसे सारे सवाल किए जाते हैं, लेकिन पप्पू पे बहन जी, बबुआ और बुआ क्या क्या बोलते हैं एक दूसरे को। सर्कस तो भाई साहब आपने क्रिएट की, हमने तो क्रिएट नहीं की। उसमें कुछ नहीं निकलता है। उसमें कुछ निकलता नहीं। ये कंपनी परिवार के रूप में है, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसके ऊपर मतलब आपको कोई ऑब्जेक्शन वाली स्थिति लगी। हम लोग तो आउट ऑफ वे जाके काम भी करते हैं। आचार्य जी, हम जो है अभी 3 साल होने को इस चैनल को लिए हुए। जी भाई साहब। और इसके पहले हम लोगों का मीडिया से कोई सरोकार नहीं था। जी भाई साहब। लेकिन आज की तारीख में जितने जो प्राइम टाइम बैंड है, शाम को 4 बजे 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, पिछले 34 हफ्ते से हम ही, बार की रिपोर्ट है जो, उसने 34 हफ्ते से हम ही टॉप पे हैं। उसके बाद फिर कोई है ईटीवी या के न्यूज या समाचार प्लस आता है, उनका नंबर दूसरा, तीसरा या चौथा ही होता है। जो प्राइम टाइम है शाम का, जी, शाम को 5 बजे से लेकर रात के 11-12 बजे तक अंत तक, जी, वो पिछले 34 हफ्ते से क्या बात है, हमें टॉप पे। साधना प्राइम न्यूज के मालिक आलोक कुमार भट्ट की बातों से साफ जाहिर है कि ये चैनल पत्रकारिता के नाम पर करोड़ों रुपए लेकर एजेंडा चलाने का अड्डा भर है। बकौल आलोक, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दीजिए, हम ना करें तो बताइए, यानी पैसे के लिए कुछ भी करा लो। अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, हम ना करें तो कहिए। तो आपका वो 100% डन है। अब उसमें क्या डिलीवर होगा, दैट्स ऑल। उसमें हम कोई आपको रोक नहीं रहे, आप क्या डिलीवर करेंगे आप बता दीजिए, दैट्स ऑल। नहीं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए, हम ना करें तो कहिए। हम तो, मैंने बताया ना कि ये तो मैं करता ही रहता हूँ, करता रहूंगा। ये कमर्शियल डीलिंग अच्छी बात नहीं होती और अच्छी बात है। मेरा जो मोटिव वो चलता रहेगा, जो चलता रहेगा। ये तो डील होनी होनी, उसमें हमें कुछ चीजें कमर्शियल चाहिए। बस मैं ये चाहूंगा कि इस कंपनी का जो सबसे बड़ा क्लाइंट हो वो प्राइम न्यूज हो। बस मैं ये तो उन्होंने आप साधना प्राइम न्यूज के मालिक आलोक कुमार भट्ट के अलावा मार्केटिंग हेड, लखनऊ हेड सभी पैसों के लिए हमारे सॉफ्ट हिंदुत्व से शुरू होकर इलेक्शन को पोलराइज करने तक के एजेंडे को चलाने के लिए फौरन तैयार हो गए। हाँ, आप नोट कर लीजिए, मेरे 4 पॉइंट हैं। जो हमारे ऑडियोज हैं इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट, इन हाउस हो सकता है उस पर वीडियो कन्वर्शन? लेकिन सर उसका विजुअल तो हमें आप ही से चाहिए होंगे ना? नहीं, उसको वो तो हमने क्या किया हुआ है, वो पप्पू और ये बबुआ जो पॉलिटिकल थोड़ा सा ये आपस में करते रहते हैं। जैसे आज तक क्या था, सो सॉरी, तो मजाक किया, तो आप उसको एनिमेटेड चाहिए कि एनिमेटेड हो जाए? एनिमेटेड सर, इसका अभी कमिट नहीं करूंगा, कोशिश करा दूंगा। अच्छा, ठीक है,
मतलब हमको वीडियो मिल जाएगा, उसके ऊपर हमें कोई एक एनिमेशन फिल्म तैयार करानी है। हमारे पास ऑडियोज रेडी हैं, ओके, क्योंकि हमने एफएम में करवाए हैं, तो एफएम वाले ऑडियो ही चलाते हैं। अब उसको ही हम चाहते हैं सेम, क्योंकि वो क्वालिटी बहुत अच्छी है। सर एक बार सुनवा दीजिए। हाँ, मैं बुलाता हूँ। जी सर बताएं। एक तो हमारा एक रहेगा सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा भाई साहब। श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति भगवान श्री कृष्ण के कोर्स श्रीमद् भागवत गीता से लेकर के उनका प्रचार प्रसार करेगी, और लोकल अगर कोई इवेंट होती है तो उनको आप कवर करवा लीजिए। कीर्तन के रूप में हो सकता है, या उसका प्रोपेगेशन कैंपस में हो रहा है, हमारे कोई व्यवस्था के लोग जा रहे हैं, तो उतना ही है। वो श्रीमद् भागवत गीता से ही पे ही फोकस रहेगा। नहीं, हम उसमें आप हमसे क्या चाहेंगे कवरेज? उसमें आपका जो डिजिटल वर्टिकल है आपका, उसमें जो हमारे लोग तो उनको फायर ब्रांड हिंदू लीडर्स बोलते हैं, लेकिन हमारे लिए तो उमा दीदी जी हो गई, जैसे विनय कटियार जी भाई साहब हो गए, माननीय श्री मोहन भागवत जी भाई साहब हो गए, उनके जब भी प्रवास हो इधर तो उनके वीडियोस डल जाएं। उनके मतलब किस तरह के वीडियो जो आते हैं वो कभी भी आए और पब्लिक, हाँ, कवरेज होता है। बातचीत के दौरान पुष्प शर्मा ने कहा कि इसी गुप्त एजेंडे के तहत वो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को भी टारगेट करना चाहते हैं। तो इस बात पर साधना प्राइम न्यूज के मार्केटिंग हेड खालिद एकदम से तैयार हो गए, और इसके साथ ही साथ खालिद ने 60-40 के पेमेंट मोड यानी 60% चेक और 40% कैश पर बात करने और जो भी बेस्ट होगा वो करने का वादा किया। साथ ही संगठन के बड़े लोगों को कवर करने पर भी सहमत हुए। जो हमारे ये जो जिंगल्स हैं, इनका जो वीडियो है आप कन्वर्ट करेंगे, दिस इज बेसिकली एंड ब्रॉडली एंड प्राइमरली इट इज कमिंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ थ्रेशिंग टू माई पॉलिटिकल राइवल्स। जो हमारे राजनीतिक मित्र हैं उनको थोड़ा प्रेम हमने भी देना है। तो इस व्यवस्था में हम, चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, लेकिन हम अपने तरीके से जिंगल्स को, सर इनको एनिमेटेड ही चाहिए ना आपको? हाँ, इनकी बजानी है, जिसे कोई ऐसा कहता भी है कि बजाते रहो, तो उसी व्यवस्था में हम भी लगे रहेंगे। बट सर्टेनली एट द सेम टाइम व्हेन वी आर कन्वर्टिंग आवर रिलीजियस persona into a political persona, then and other political party they are doing all bad things within their democratic rights. I have all the rights to play the same game with the same rules. बिल्कुल सही बात है। गलत तो नहीं बोला दादा? तो भाई साहब, जब अगर बाकी लोग उन्हीं रूल्स से वही गेम खेल रहे हैं तो मुझे भी वही गेम खेलना पड़ेगा। मैं तब आदर्शवाद की बात करूंगा तो वो नहीं चलेगा। They are trying to maximize and take the mileage on the minorities issues, then I will try to take the polarization and convert the votes in my favor. ठीक है। अगर वो उस नियम से चल रहे हैं, उन्हें कोई उंगली नहीं बोल रहा है, तो मुझे ऊपर क्यों सारे नियम लागू हों? बस उतना है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया मोमेंटम 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद। अभी इन 3 महीने में हम लोगों को क्या करना होगा? श्रीमद् भागवत गीता प्रचार समिति के लॉर्ड श्री कृष्णा के ही कोर्स, अभी सिर्फ माहौल हिंदुत्व का ही रहेगा। नहीं तो वो हमको जिंगल्स को कन्वर्ट करना है, जो आपने अभी जैसे मैंने आपको दे दी, मेरी थर्ड पार्टी वेंडर से बात चल रही है, अगर उन्होंने वीडियो बना दी तो मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा। तब इशू ही नहीं है तब तो। और लोगों वही है, भगवान श्री कृष्ण खड़े हुए हैं, शंख बजा रहे हैं, नीचे अर्जुन बैठे हुए हैं, जो कुरुक्षेत्र का याद आते ही जो सीन याद आता है वही रहेगा, जिसको देखते आपके मन में एक पवित्र भाव आता है। प्लस द कवरेज ऑफ द इवेंट्स जो आप हमको बताएंगे। एंड द सेकंड एंड लास्ट थिंग बिफोर विल वाइंड अप दिस एंटायर इशू, इसमें थोड़ा सा मैंने कहा था कि उसको डोनेशन का रहता है तो 60-40 में कर लीजिए। ठीक है, वो मैं बात कर लूँगा और जो बेस्ट होगा वो करा दूंगा, बेफिक्र रहो। उसमें सर जो अपना आरती का कवरेज वाला है हरिद्वार से, उसकी टाइमिंग मॉर्निंग 4:30 चाहिए आपको कि शाम को 4:30? 6 बजे से पहले कोई नहीं। तो मैं इसमें आपको बता दूं, कवरेज होगा इवेंट्स का, जिसमें हमारे पॉलिटिकल लीडर्स आएंगे, देन जिंगल कन्वर्जन इनटू एनिमेशन। पॉलिटिकल लीडर्स नहीं, वोट वाले नेता नहीं, संगठन के व्यक्ति, जो स्कूल ऑफ थॉट के व्यक्ति। ठीक है। और मोहन भागवत जी का स्पेशल करिए बस। ठीक है। सॉफ्ट हिंदुत्व का एजेंडा रहेगा हमारा 3 महीने का। 3 महीने का। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, गंदगी आएगी तो हम भी गंदे हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आरती का हमको लाइव कवरेज, बाद में गंगा नहा लेंगे। गलत नहीं बोला भाई साहब। आरती का कवरेज है सर ऑन सैटरडे एंड संडे। हाँ जी, दैट वुड बी अ लाइव कवरेज। तो इनिशियली द टेंटेटिव बजट इज अराउंड 30, ओके। लेकिन अगर आपको कम लगता है तो 10% स्ट्रेचेबल, वो मैं परमिशन दे दूंगा। आपको लगता है कि नहीं अच्छा ये थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा बढ़ा दो, तो उसको आप बढ़ा लें। काम अच्छा होना चाहिए। मैं हम लोग, हमें पैसा नहीं मिल रहा है इसमें,
ये कोई चवनप्राश नहीं कि 8 रुपये डब्बे में मिलेंगे हमें तो 2 रुपये मिलेंगे। ये तो इससे पार्ट ऑफ द विचार की बात है बेटा। मैं समझ रहा हूँ सर, और आपके साथ जुड़ना इसलिए भी जो है हम लोग चाहेंगे कि हमारा चैनल तो हम लोग हमेशा से ही जिसको कहते हैं एक नेशनलाइज इंजीनियर पे ही काम किया है। तो आप हमारा कंटेंट देखेंगे तो आपको समझ में आता है। साधना प्राइम न्यूज में हमारी मुलाकात अशोक मिश्रा से हुई। अशोक प्राइम के लखनऊ ब्यूरो हेड के तौर पर कार्यरत हैं। आपने तो हमारे एजेंडे को चलाने के लिए एक नया और चौंकाने वाला आइडिया दे दिया। आइडिया भी ऐसा कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। लेकिन भट्ट साहब वगैरह पूरा एजेंडा चला पाएंगे हिंदुत्व का? चला लेंगे, हिम्मत है, ठीक है, क्योंकि इसके मालिक लोग मुस्लिम हैं, लेकिन वो भी बहुत कट्टर नहीं है, तो तरीके से चला देंगे, वो तरीके से चला देंगे। क्योंकि मैंने भी इनको ज्वाइन तभी किया। आपका सालाना का जो है वो इकट्ठा वन टाइम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बहुत जगह कैश जा रहा है, तो उसमें आपको कहीं रिकॉर्ड पे नहीं लेंगे और आपको कैश डाइवर्ट कर देंगे। हम मतलब ये चाहते हैं कि जो हम लोग अखबार वालों के बीच में बैठते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि उनके पास भी हम लोग अपना एजेंडा तो उनसे बात करें और जो लोग जैसे आते हैं, जैसे आज एक्टर्स हैं, ये है बोले जी हैं, कृष्ण गोपाल भाई साहब आज यहाँ पे ढेर सारे लोग हैं, वो बैठ करते हैं, तो हम लोग उसमें क्या क्या हुआ उनको बताएं, वो छपे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मीडिया मैनेजमेंट एक तरह का हो गया, एक तरह की मीडिया मैनेजमेंट। बाकी लेख लिखने के लिए तो समय यहाँ बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, चैनल वो तो नहीं हो पाएगा। वो लेख यदि कहीं से आ जाए तो छपवाने की जिम्मेदारी है। तो फिर मतलब एक तरह का लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ लाइजनिंग उनको खिलाया पिलाया, उनको खुश रखा, और किसी को कैश से और किसी को कैसे खुश रख करके। तो उसमें कौन कौन से अखबार के अपने पास मिल सकते? सभी अखबार हैं। अच्छा, दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये हिंदी भाषी तो हो ही जाएंगे। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हाँ, राष्ट्रीय स्वरूप है, यहाँ करीब 20 अखबार दैनिक है जिसको लोग पढ़ते हैं। तो वो मैनेज मेन तो 5 है, मेन तो 5 है। तो उनका क्या मंथली बेसिस पे रखना है उन पत्रकारों को, या कैसे रखना है? मंथली बेसिस पे तो रखना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, जैसा जिसका काम वैसा उसका पेमेंट। हाँ, जैसा जिसका। हाँ, तो मॉडेस्टली क्या इनको पेमेंट जाता है? देखिए ये तो खबर पे काम करेंगे। हाँ, एक हिंदुत्व एजेंडे को रन करेंगे। हाँ, और ये जाएगा अंडर टेबल भी, पता नहीं। हाँ, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई बस। लेकिन ये हिंदुत्व के एजेंडे पे काम करेंगे और जो हमारे पॉलिटिकल राइवल्स हैं उनकी बजाएंगे। यही मोटा मोटा 2 मुद्दे हो गए। तो हम एक पत्रकार को, जो बड़ा पत्रकार है उसको 1 महीने का लाख, और जो छोटा पत्रकार है उसको 50,000। तो साल भर का जो बड़ा पत्रकार है उसे 12 लाख चले गए, और जो छोटा पत्रकार है उसे 6 लाख चले गए। ये रेट ठीक है जी? आप यही कह रहे हैं? हाँ, और यदि वो करते हैं तो। भट्ट साहब से आगे की बातचीत में हमने पता लगाना चाहा कि क्या वो कैश लेकर हमारे एजेंडे को चलाएंगे। खबर चलाने के लिए तो वे पहले से ही तैयार थे और कैश एडजस्टमेंट के लिए झटपट मान गए, और कैश को हमारी बताई गई जगह से कलेक्ट करने में भी इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। इतना ही नहीं, ये तो हमारे एजेंडे को अग्रेसिवली चलाने की भी बात करने लगे। वो इशू नहीं है, हम उसके बारे में इसलिए नहीं बात करेंगे। जैसे आप एक वर्ड बोले थे रोजी, सॉफ्ट हिंदी, तो हम लोग सॉफ्ट क्यों करेंगे? हम अगर हार्ड कर पाए तो हमारा बस ये उसके सामने नहीं, क्योंकि वो 10 जगह चैनल पे जाता है, जगह जगह वो कहीं भी कुछ भी बोले, तो हमारा तो हिडन एजेंडा है। तो हम लोग डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे थे? अननेसेसरी इनका कमीशन कितना था? नहीं, बात कमीशन की नहीं थी भाई साहब। बात यह है कि संगठन कैश देते हुए कहीं ना दिखाई देते। हाँ, वो तो ठीक बात है। हम लोग बहुत गुप्त व्यवस्था में काम करते हैं भाई। हमने ही तमाम अभी बीजेपी की कैंपेनिंग हुई थी चुनाव में, तो बहुत सी चीज़ें हुई, तो हम तो एक इकलौते ऐसे चैनल थे कि हम तो तीनों की कैंपेनिंग आई थी, बसपा की, सपा की और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बीजेपी का है। जितना बेहतर कर सकते हैं वो करें, जब हैं तो करेंगे, उसमें कोई। बिल्कुल। कल मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वो हमारी पहली मुलाकात थी,
जी। तो एक शांत भाव से पहले एक ट्यूनिंग हो जाए, उसके बाद एजेंडा आपका ही है। और जो है हमसे जितना एग्रेसिवली करना है वो कराइए, क्योंकि हम तो उसी के लिए हैं ही हैं। मतलब हम तो खुले तौर पे चलने वाले आदमी हैं। व्यवस्थाएं मुझे लगता है कि आप ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। हाँ, और आप ये सोचिए कि इससे आप अंदाज़ा लगाइए, जो यहाँ का सूचना एवं जनसंपर्क विभाग है, इससे ऐड हमें सरकारी विज्ञापन मिलते हैं। सरकार जब बदली तो जब पिछली सरकार थी समाजवादी पार्टी की, तो चैनल्स जो थे, PTV को दिया उन्होंने 42 करोड़ रुपए, न्यूज़ स्टेट को दिया उन्होंने 34 करोड़ रुपए साल में, एक साल का मैं बता रहा हूँ। फिर जगह नीचे आके हमको मिले थे सिर्फ कितने मिला था, 1 करोड़ 80 लाख रुपए हमें मिला था। इसलिए मिला था कि हम बीजेपी को, हम जो है समाजवादी को लेकर साथ नहीं चलते, और वो उन्होंने अपना, तो हमको दोयम दर्जे से देखा जाता था। तो हमें लगता है कि अगर हमारा समय आ रहा है, हमारी व्यवस्था आ रही है, तो हमें तवज्जो सम्मान मिलना चाहिए। बस वही डर था कि हमारा एजेंडा एग्रेसिवली रन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब देखिए इलेक्शन का लास्ट 2 महीने रह जाएंगे तो सारे नियम ताक पर होंगे। हाँ उस समय वो अपना माइनॉरिटी कार्ड कोई खेलेगा, कोई दलित कार्ड खेलेगा, हाँ बिल्कुल। तो उस समय हमें हिंदू कार्ड भी खेलना होगा और पोलराइज भी करना होगा, क्योंकि आदर्शों से आप बहुत देर तक नहीं चल सकते। हाँ, वो राजनीति में तो राजनीति तो करनी पड़ेगी। तो बस उस समय ये समझ में आ जाए कि शुरुआत में हल्का इंजेक्शन है, ये धीरे धीरे ये डोज बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हम तो शुरुआत में भी तेज इंजेक्शन लगाने को तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है भाई। हमें दिक्कत जब हो भाई, मैं मध्य मार्गी नहीं हूँ, मैं एक मार्गी हूँ, मैं मध्य मार्गी नहीं हूँ। बहुत बड़े। और चैनल जो है आचार्य जी किसी के कंट्रीब्यूशन से नहीं चल रहा है, ना सूचना विभाग के कंट्रीब्यूशन से चला, और ना जो भी चल रहा हमारे अपने स्ट्रेंथ, अपनी ताकत, अपने फाइनेंस, अपनी बैटिंग से चल रहा तो सर कैश को डाइवर्ट कैसे करेंगे हम? वो से कौन से अकाउंट, मतलब आप हमें कोई नंबर देंगे, हमारा बैंक व्यक्ति डालेगा, या आप कैश उठा के लेके जाएंगे? आप है। कहाँ से हमें कराना होगा? बख्शी का तालाब से मिल जाएगा आपको। हाँ ठीक है, हो जाएगा। आप उठवा लेंगे? हाँ। क्योंकि नंबर कैसे होगा? नंबर तो फिर वो अगर कैश है तो फिर नहीं नहीं, हमारा बाहर की व्यवस्था है ना, क्या मतलब विदेशी व्यवस्था है। और अगर आप यहाँ से कर सकते नहीं, हैं, यहाँ हमें यहाँ कोई और वो एक टाइम में नहीं देगा। हम लोग एक टाइम में 10 से 50 या 1 के आसपास की व्यवस्था वो देते हैं। अच्छा। तो मान लिया आपके 2 हैं तो आपको 2-3 चक्कर मारने पड़ेंगे। हाँ, वो हो यहाँ पे तो हम बस्ती तालाब यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, हाँ, तो हमारे लिए दिक्कत नहीं। इधर से 2 का है 2 CR का, वो आपको कैश में हो जाएगा। आप पेपर सिर्फ 1 का ही देना, ठीक 2 CR जो टोटल 3 में से 2 का है, उसकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है ठीक ना, वहाँ आपने लिया ना हमने लिया। ठीक ये 3 महीने का दूंगा हम, ठीक। तो 1 CR 1 महीने का, इट्स ह्यूज अमाउंट। ऑन पेपर हम लोग 1 CR का लेंगे। हाँ, लेकिन एजेंडा बहुत मन से कीजिए। अब एक बार आप शुरू करिए, फिर आपको खुद ही हम एक आपसे और रिक्वेस्ट करेंगे कि कभी इस शासन सत्ता से लेके हमें कोई आवश्यकता होती है तो आप हमारी मदद होगी, मदद करेंगे। बिल्कुल मदद होगी, निश्चिंत मदद होगी। साधना प्राइम न्यूज के डायरेक्टर आलोक कुमार भट्ट से पुष्प शर्मा की फोन पर भी बातचीत हुई। पहले के एजेंडे के साथ साथ इस बार हमने अपने ही कुछ नेताओं के खिलाफ खबर चलाने के लिए जब इनसे कहा तो ये बिना किसी सवाल जवाब के तैयार हो गए। आलोक ने कहा, आपका जैसा आदेश होगा पालन होगा। एक तो जो अभी क्या हुआ ना, ये गोरखपुर वाली हार के बाद भट्ट जी थोड़ा सा पूरे संगठन में मतलब एक मायूसी का माहौल है थोड़ा सा। जी 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 तो इस वाली व्यवस्था में जो भीतर घात है ना, वो हमें तंग कर रहा है। जी जी पार्टी के अंदर ही जो अपने तो उसमें ना मेनका गांधी, वरुण गांधी और इनका क्या नाम गाजीपुर वाले जो है ना मनोज सिन्हा जी, जी 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 तो इनके थोड़ा सा इनके एंटी भी अगर स्टोरी चलाएंगे तो हमें अपने को दिक्कत नहीं है, मतलब तो हमें फायदा होगा उससे, मतलब उससे संगठन को फायदा होगा। बहुत फायदा होगा। वो आदेश भी है, क्योंकि उनकी जो वरुण गांधी वाला जो सोच है ना, उनका था कि वो भी सीएम के लिए प्रोजेक्ट किए जाएं, तो भीतर जी, जी, घात, जी। क्योंकि अब हमारे पास सारा LIU रिपोर्ट है, सब चीज़ें हैं, तो इनके कार्यकर्ता पीलीभीत से, गाजीपुर से, ये सब लोग वहाँ जाके हमारे एंटी लॉबिंग कर रहे थे, वो सब चल रहा था वहाँ पर।
अच्छा अच्छा, हाँ। इस तरीके का था। हाँ, तो इसलिए अब इनको संगठन के अंदर तो रहेंगे, लेकिन इनके खिलाफ कुछ मनोज लोग। सिन्हा जी गाजीपुर वाले, और मेनका गांधी जी और ये वरुण गांधी जी, हाँ जी, इनके इन 3 लोगों का ना? हाँ, इनके खिलाफ कुछ भी चलता है तो मतलब हमें दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से और बल देंगे हम आपको। ठीक 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 एक तो ठीक, ये बहुत रहेगा, अच्छा। एक तो ये रहेगा, और दूसरा जो हमारे अलायंस पार्टनर हैं, जैसे अशोक राजभर, ओम प्रकाश राजभर हो गए, जी, और एक अपना दल वाले हो गए, या सेंटर में अनुप्रिया पटेल हो अनुप्रिया गए, हाँ जी वो हो जी गई, या उपेंद्र जी कुशवाहा हो गए। तो इन ये टीडीपी के बाद ना, चंद्रबाबू नायडू के बाद इन सबको ना पर लगे हैं उड़ने के। हाँ हाँ, ये लोग जो है मौके की नजाकत का हाँ। फायदा उठाते हुए हाँ। एक साथ जो ये लोग उभर आए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ, तो उनके खिलाफ लगातार स्टोरी चलते रहना चाहिए, ताकि ये लोग समझ जाए कि बाप बाप होता है और हमें अंडर में रहना है। जी 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 जी। एक बार फिर से हमें बताइएगा, ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल उपेंद्र और कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा, तो ये तो बिहार के है ना उपेंद्र हाँ कुशवाहा? जी, हाँ जी, हाँ जी। जी 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 तो जी मेजरली मतलब जो भी हमारे अलायंस पार्टनर हैं उनकी धोते रहना है, ताकि वो औकात में रहे, और रहे तो कदमों में रहे, मतलब सर ना उठाए, जी जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। है ना। और एक जो आपका जैसा आदेश होगा वो पालन होगा। पत्रकारिता का स्तर किस हद पर आ चुका है, इसका एक उदाहरण आलोक के साथ फोन पर बात करने के दौरान भी दिखा। किसानों को माओवादी कनेक्शन से लेकर डिबेट में हिंदू मुसलमान सेंटिमेंट वाली मांगों पर भी ये शख्स फौरन तैयार हो गया। आलोक ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें बस थोड़ा इनपुट दीजिए, हम चीजें तैयार करवा लेंगे, हम उसको और डेवलप करेंगे। और जो एक भट्ट जी, जो ये जो फार्मर्स वाला मुद्दा है, जी क्योंकि ये देश फार्मर्स के मामले में सेंटिमेंट्स पे चलता है, और अलग अलग पॉकेट से जो ये फार्मर्स के मुद्दे, मतलब ये झंडे उठा के चल देते हैं, और ये बॉम्बे तक पहुंच जाते हैं, दिल्ली तक पहुंच जाते हैं। इसके पीछे कोई एक संगठित गिरोह है, कुछ लोग हैं। ऑर्गेनाइज हो रहा है। हाँ, ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। कोई। हाँ, तो हाँ। मतलब वो भोले लोग हैं, वो इतना दल बल उनके पास नहीं होता कि वो इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर सके और ऑर्गेनाइज तरीके से दिल्ली बॉम्बे का सफर पूरा कर सके। जी 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 तो उसके पीछे कोई फंडिंग है, उसमें हमें लगता है उसके पीछे एक चिपकाते रहना है, मतलब एक माओवादी कनेक्शन चिपकाते रहना है कि ये भड़काए हुए लोग हैं ये सीधे साधे, लेकिन ये माओवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो घुस गए हैं इनके बीच में, और जो बरगलाते हैं, जो उपद्रव करवाते हैं, पुलिस गोली चलाती है, तो सरकार का दोष निकलता है फिर। जी 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 जी। तो यही तरीके से ये सरकार को बदनाम करते हैं, इसलिए बार बार ये इस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं। जी जी जी। और कुछ कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे जैसे अध्यक्ष जी का फेक एनकाउंटर वाला मामला है, सोहराबुद्दीन का, या लोया जी जो क्या नाम, इसमें जुडिशरी वाला मामला है जिसमें वो जज साहब की डेथ हो गई थी। जी जी जी। तो कुछ ऐसे वकील हैं, जैसे प्रशांत भूषण हो गए, दवे जी हो गए, या फिर कामनी जायसवाल हो गई, या फिर इंदिरा जयसिंह हो गए। ये लोग बात बात में सरकार को नीचा गिराने के लिए सुप्रीम कोर्ट खड़े हो जाते हैं। हाँ हाँ, इनका कोई न कोई एजेंडा शुरू हो जाता है। इनका कोई एजेंडा है, तो इनका भी एक, अब तक ये इसलिए बचे रहे कि इन्हें लगता है काला कोट पहन करके हम तो अमर हो गए। तो कोई ना कोई हम इनकी जमीनों के घपले, या जमीनें कितनी कितनी हैं, कैसे कैसे इनके धंधे हैं, वो दे देंगे। तो इनका कैरेक्टर असैसिनेशन भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमें थोड़ा सा इनपुट दीजिए, बाकी हम चीजें तैयार करा लेंगे। हमारी अपनी एसआईटी होती है, हाँ। तो हम उसको डेवलप कर लेंगे। आप जो बताएंगे वही, बाकी आपने जो कहा है तो उसको अपने हिसाब से हम और एक्सप्लोर करते हैं। हमारे फिनांस मिनिस्टर भी हैं, मतलब श्री जेटली जी, पर उनका अब ना वो ओज रहा है, ना वो व्यवस्था भी उस तरह से फिट हो पा रहे हैं। तो अगर उनके खिलाफ 2 स्टोरी भी बढ़िया दबा के चल गई, तो हमें ड्रॉप करने के लिए हमें रास्ता मिल जाएगा। अच्छा, ऐसा है कोई एजेंडा क्या? एजेंडा है, अब अध्यक्ष जी और उस लेवल पे ही चीजें चल रही हैं, गुजरात के लेवल पे। जी। लेकिन जी, ये इन्होंने क्योंकि एनकाउंटर के केस डील किए, या हिंदुत्व आतंकवाद से जुड़े हुए मामले थे, समझौता ब्लास्ट, ये वो वाले सारे केस उनके हाथ में थे, तो उनके पास पेट की नब्ज है, मतलब एक तरह के वो बहुत गहरे पहुंचे हुए हैं। अच्छा। तो हमारे पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए ना उन्हें गिराने का, मतलब हटाने का। एक तो एक ये है, बिल्कुल। हाँ, एक माहौल बन जाएगा तो कह देंगे कि भैया पब्लिक परसेप्शन आपके खिलाफ है, आपको बाद में देख लेंगे। ठीक है। और बाकी देववाणी श्री मोहन भागवत जी भाई साहब का अगर कभी भी आदेश होगा जी, और हमने को लगेगा कि हमारी जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर किसी मंत्री के खिलाफ भी अगर हमें स्टैंड लेना पड़े, तो हमें आपको इशारा दे देंगे, तो वो अपने ही मंत्री के खिलाफ भी अपना को तंबू गाड़ देना है। बिल्कुल, आप जैसा निर्देश होगा।
है ना। और एक लास्ट पॉइंट है जो आधार वाली जो स्टोरी है, आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। पहले हम इसका विरोध करते थे, अब हम हर चीज से जोड़ रहे हैं। मानते हैं जनता को दिक्कत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि अब हम उस स्टैंड से पीछे नहीं हट सकते। मान लिया सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ वर्डिक्ट आता है जी, तो भी सुप्रीम कोर्ट पे वो क्वेश्चन उठे ना उठे, लेकिन आधार का सपोर्ट करते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल जो पब्लिक डिस्कशन होता है ना आपके यहाँ एजेंडा, जैसे प्राइम टाइम पे डिबेट होती है, जी, उसमें जैसे ट्रिपल तलाक पे हिंदू मुस्लिम को बुला लिए, दोनों के ग्रुप उठा लिए, तो उसमें आपकी तरफ से अंडर करंट मुस्लिम्स के थोड़ा सा उनको दबाने का एक प्रोसेस रहना चाहिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्टअप रहना चाहिए। ठीक है। साधना प्राइम न्यूज चैनल यूपी और उत्तराखंड का रीजनल चैनल है और इसके बड़ी तादाद में दर्शक भी हैं। अगर इसी तरह के न्यूज चैनल्स किसी खास एजेंडे पर चलते रहे तो जनता के बीच न सिर्फ भ्रम की स्थिति बनेगी बल्कि उनकी राय भी प्रभावित होगी।